हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो, जहां पे हम बात करते हैं गैजेट्स के बारे में। इट्स वेरी एक्साइटिंग टू टॉक अबाउट गैजेट्स, क्योंकि इनकी दुनिया कभी रुकती नहीं है। यहाँ पे दिस वर्ल्ड इज एवर एक्सपैंडिंग, हमेशा कुछ ना कुछ नया आता रहता है। वी गेट टू नो ऑल दीज न्यू सॉर्ट ऑफ टेकी गैजेट्स, एंड इन फैक्ट इन दिस शो गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी, ये मेरा काम है कि मैं आपके लिए ऐसे ही गैजेट्स के बारे में हमेशा हर एक नए एपिसोड में एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूं। Basically in this episode as well, I've got some new cool things for you. तो let's see आखिर कैसे हैं ये नए वाले gadgets. My name is Gaurav, aka Technical Guruji. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Now guys, before we start with our top story, let's first see कि आखिर नया क्या हुआ है in the field of gadgets in this section, news of the week. Sonos has launched its two new smart speakers, the Era 100 and the Era 300 in India. The Era 100 is a compact and affordable smart speaker with rich sound, while the Era 300 is a flagship speaker with Dolby Atmos for immersive audio. The Era 100 is priced at Rs 29,999 and the Era 300 is priced at Rs 54,999. Samsung ने लॉन्च किया है the Galaxy Z Flip 5's yellow color variant. It is priced at Rs 99,999 for the 8GB RAM 256GB storage variant, and the 8GB RAM 512GB storage variant is priced at Rs 1,09,999. Acer ने लॉन्च किया है the e-bike in India, the Moovy 125 4G. It is a commuter-friendly e-bike with a top speed of 75 km/h and a range of 80 km. ये फीचर करता है स्वैपेबल बैटरीज, एक लाइट वेट चैसी, 16-inch व्हील्स और डिजाइन दैट इज डेटा ड्रिवन. इट इज प्राइस्ड एट Rs 99,999. अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर बिग स्टोरी ऑफ द वीक, एंड आई हैव टू ओपन समथिंग. इट्स टाइम टू ओपन, क्योंकि आई एम गोना टॉक अबाउट दिस, और ये है OnePlus Open. Yes, it's a brand new smartphone from OnePlus. It is a foldable and the name is OnePlus Open because this phone opens like this. तो यहाँ पे ये एक नया latest folding smartphone है OnePlus की तरफ से. Quite premium, quite exciting, quite feature packed. I mean, in this phone, I think OnePlus took its own sweet time for development, and हमको जो finally ये product मिला है, this looks like an amazing finished product, जहाँ पे the kind of specs it has, जिस तरीके से पूरा आपको एक package मिलता है, talking about the design, talking about the form factor, talking about अंदर क्या है या कैमरा कैसा है, what all things it carries. मेरे ख्याल से this looks quite interesting. Just to give you एक छोटा सा आइडिया अबाउट दिस फोन, बाहर हमारे पास में एक 6.31 इंचेस का स्क्रीन है, विच इज वाइड इनफ फॉर यू टू यूज योर फोन कंफर्टेबली. अगर आपने इसको ओपन नहीं भी करना है, यू कैन यूज इट लाइक अ स्टैंडर्ड स्मार्टफोन. द मोमेंट यू ओपन इट अप, अंदर हमारे पास में वी हैव दिस बिग 7.82 इंचेस का स्क्रीन. आई मीन बिग इनफ टू डू ऑल योर मल्टीटास्किंग, या फिर अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट पे काम करना है, फॉर ऑल योर एंटरटेनमेंट नीड्स, यहाँ पे आप सब कुछ ऐसे काम कर सकते हैं. एंड इन फैक्ट इट इज वेरी लाइट, जहाँ पे वेट है केवल 239 ग्राम्स का. द थिकनेस इट हैज is just 5.9 mm, once you open it. तो मतलब आपको काफी sleek at the same time quite sturdy because of this new design of the hinge. ये फोन फील होने वाला है. कैमराज fantastic. हमारे पास में एक ट्रिपल कैम सेटअप है, जहाँ पे we have for the first time ever in any smartphone Sony's new Lightyear T808 sensor. This is a pixel stacked sensor जहाँ पे performance काफी अच्छी होती है. Then we have an ultra wide as well. उसके बाद में we have a periscope zoom camera as well. This bag comes in two options. मेरे पास में जो आपको दिखा रहा हूँ मैं फिलहाल, this is the leather option, जो कि काफी अच्छा लगता है. We have a glass option as well. Battery is 4805 mAh. Supports 67 watts of fast charging. With 4 speakers and everything, this phone feels like a nice sweet foldable coming from OnePlus. तो एक बार इसको देखते हैं ध्यान से, एक बार let's see up close कि और क्या फीचर्स पैक हैं इस फोन में, एंड द कंप्लीट परफॉर्मेंस एंड द कंप्लीट एक्सपीरियंस वो आपको कैसा मिलने वाला है इसी नए फोल्डेबल के साथ में. OnePlus ने ऑफिशियली लॉन्च किया है इट्स फर्स्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन, द OnePlus Open. It packs a 7.28-inch 2K primary display and a 6.31-inch secondary display.
डिज़ाइन की बात की जाए तो द OnePlus Open weighs just 239 grams and is only 5.9 mm thick. When it comes to the Open's cameras, it comes with a triple camera system जो है एक 48 megapixel main and एक ultra wide camera along with a 64 megapixel telephoto camera. What makes the camera special is that it comes with Sony's new Lightyear T808 sensor. The OnePlus Open is based on the Snapdragon 8 Gen 2 mobile platform. The phone comes in a glass back as well as a leather back option. OnePlus Open को पावर करता है 4805 mAh battery which supports up to 67 watts fast charging. The phone is priced at rupees 1,39,999. Now guys, at this price, which is 1,39,999 rupees, एक चीज तो confirmed है that OnePlus has targeted this phone towards that premium segment. और वो होना ही है because this phone is, for one, it is a folding phone, तो आपको पता है कि the technology is definitely latest and cutting edge. For two, the kind of specs it has, ये एक average folding smartphone नहीं है, sometimes that you see in a budget range. This is definitely a phone जहाँ पे सब कुछ चीजें OnePlus ने ऐड करी हैं. एंड इन माई एक्सपीरियंस आई वुड से अगर आपको एक फोल्डिंग फोन यूज करना है या अगर आपको ट्राई करना है लेट्स से, तो मेरे ख्याल से ये फोन वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेगा जो शायद आप सोच रहे हैं कि फोल्डिंग फोन को करना चाहिए. एंड जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा पॉलिश्ड है. घर पे जाके तुम गूगल कर लो, मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो. दिस इज समथिंग दैट वी डू ऑन अ डेली बेसिस. मतलब हम सभी गूगल यूज करते हैं, हम सभी विकिपीडिया पे यूज करते हैं, बट डिड यू नो कि गूगल एक्चुअल में गूगल नहीं होना चाहिए था, वो होता गूगल. वहां से एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से गूगल बन गया. अब हुआ ये जब स्टार्ट हुआ पूरा गूगल का आइडिया, आई टोल्ड यू पहले के एपिसोड में दैट द फर्स्ट नेम वाज बैकरब. अब बैकरब से नाम जब चेंज करना था तो द फाउंडर्स ऑफ गूगल, लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू टर्म, और उनको एक टर्म मिलती है गूगल. गूगल का मतलब क्या होता है इन मैथमेटिक्स? इट्स नंबर 1 फॉलोड बाय 100 zeros. तो आइडिया ये था कि अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हम एक साथ दिखाने वाले हैं, इट क्लियरली सिग्निफाइज द वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. तो वहां से दिमाग में वर्ड आ गया गूगल. लेकिन जब डोमेन खरीदने गए तो उस टाइम पे गलती से GOOGOL की जगह GLE टाइप हो गया और वहां से बना गूगल, जो आज हम सभी डेली बेसिस पे यूज करते हैं. बट डिड यू नो इट वाज अ स्पेलिंग मिस्टेक दैट एंडेड अस विद गूगल. फ्रेंड्स, इन दिस सेगमेंट मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं अबाउट योर गैजेट्स. योर डिवाइस माइट बी एक्सपोज टू सम क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज, जिसके बाद में आपका डेटा, आपका इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करके रखा है उस फोन में, वो सब गलत हाथों में जा सकता है. अभी ऐसा ही कुछ हुआ व्हेन द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम फॉर इंडिया एक एडवाइजरी इशू करती है एंड वो बताती है कि मल्टीपल वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड, टॉकिंग अबाउट एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 12L एंड साथ में एंड्रॉयड 13 भी, ये कुछ क्रिटिकल इश्यूज को पोज कर रहे हैं. देयर आर सम मेजर सिक्योरिटी फ्लॉज, और इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि गूगल एक अपडेट इशू करेगा और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बाद में उस अपडेट को अपने अपने डिवाइसेस में पुश करेंगे एंड आपके पास जब वो अपडेट आए तो आपको उसे इंस्टॉल करना है. और आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके फ़ोन का जो डेटा है या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने फ़ोन में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करी है वो कहीं गलत हाथों में चला जाए, कोई आपके फ़ोन को रिमोटली कंट्रोल कर ले, कोई एक मलिशियस ऐप आपके फ़ोन में आ जाए. तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए द फर्स्ट स्टेप that you can do and you have to do is to update your devices. तो make sure आज के बाद keep it like a regular habit. Once in a while, sometimes तो आपको notification खुद से मिल जाएगा, but if it doesn't come, once in a while, every 15-20 days, normally just check for updates for all your devices. For example, if you have a camera, अब आपने एक बार एक कैमरा खरीदा है जो 2 साल आपको हो चुके हैं उसको खरीदे हुए और आप 2 साल से इस कैमरा को यूज़ कर रहे हैं and you're just using it like normal, यू नेवर नो, क्या पता उसके लिए एक नया फर्मवेयर अवेलेबल हो जहाँ पे उस कैमरा की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हो गई हो, उसके तो कुछ नए फीचर्स मिल गए हो. इफ यू जस्ट कनेक्ट दैट कैमरा विद कंप्यूटर एंड वहाँ पे अगर आप चेक करते हैं फॉर अ न्यू सॉफ्टवेयर, हो सकता है आपको एक नया सॉफ्टवेयर मिल जाए और आपके कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड हो जाएं.
So just as a normal habit, do it with all your gadgets, once in a while, every 3 weeks, every 4 weeks, to make sure that you get the latest features. At the same time, you are completely saved from all these critical issues, because आप ही को काम करना पड़ेगा, वो इंस्टॉलेशन का बटन आप ही को दबाना पड़ेगा. Nobody is going to do it for you. It's your gadgets, and I mean, you need to protect them yourself. Guys, I'm sure you're enjoying this episode. वैसे अभी एक टाइम है छोटे से ब्रेक का, but right after that, I'm gonna talk about some interesting tech tip, and I'm gonna answer all your questions in our segment Ask TG. See you after this short break. Hello guys, welcome back after the break to your favorite show Gadgets 360 with Technical Guruji. My name is Gaurav aka TG, and break से पहले हमने डिस्कस किया काफी इंटरेस्टिंग गैजेट्स के बारे में. इनफैक्ट द OnePlus Open is वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स. और अब हम बात करते हैं कुछ बातचीत के बारे में. बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स हाउ वी सोशलाइज. और अक्सर हम हमारे मोबाइल फोन्स के साथ में भी बातचीत करते हैं. सीरी हो या गूगल असिस्टेंट हो, आपको पता है कि आप चाहते हो कि एक बातचीत हो. इट्स easier that way to interact with your phone. But let me give you a tech tip. अक्सर ऐसा होता है कि आपके फोन के स्क्रीन पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. मे बी यू आर ऑन अ वेब पेज, या मे बी यू आर रीडिंग अ बुक, लेट्स से, या अगर कुछ भी बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, कई बार बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. समटाइम्स इट्स this lazy feeling, या sometimes it's more convenient कि अगर कोई आपको वो सब चीज़ें पढ़ के सुना दे. Let me give you a tech tip. आपके फ़ोन में एक इनबिल्ट ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू स्पीच का. Either you are using Android or iOS, फर्क नहीं पड़ता. दोनों केसेस में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा. You just need to dig deep into the accessibility settings, और वहाँ से you can even customize the output speech options कि आपको किस स्पीड में वो स्पीच चाहिए, या फिर किस टाइप की आपको वॉइस चाहिए, और आप बड़े आराम से जो भी आपके स्क्रीन पे है वो सुन सकते हैं. Text to speech is a feature that reads digital text aloud. Words on a computer or other digital device can be converted into audio using this. कभी कभी ये आलस के मारे आप करेंगे, कभी कभी ये करेंगे आप कन्वीनियंस के मामले में. बट इट्स अ नाइस टिप टू फॉलो कि आप आपके स्क्रीन पे जो भी है वो सुन भी सकते हैं, बिकॉज व्हाट यू आर यूजिंग इज नॉट अ डम फोन, इट्स अ स्मार्टफोन. सो मेक यूज ऑफ इट. Okay, so we're coming towards the end, और ये है मेरा फेवरेट सेक्शन. guys, you know about it. It's Ask TG, जहाँ पे आपके सवाल होते हैं, मैं जवाब देता हूँ. तो let's see इस हफ्ते हमारे पास में क्या क्या सवाल आए हैं, because I am ready with all my answers. Hi TG, which mobile brands should we buy to support PM Modi's Make in India initiative? Okay, I'll tell you something very honestly. Any phone in the market, when you see the label that it is made in India or assembled in India or something like that, go ahead, get it. That's my honest answer. आज अगर कोई फ़ोन बनता है इंडिया में, तो हम देखते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स इंडिया से आते हैं, कुछ कंपोनेंट्स इंडिया के बाहर से भी आते हैं, और हम विद टाइम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स इंडिया से आने शुरू हो जाएं. बट दिस नंबर is very difficult to go to 100%, because ये बहुत ज़्यादा मुश्किल एक प्रोडक्ट है जहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स काम में आते हैं. Sometimes the protocol might not be supported. Sometimes this USB port is not sufficient to give you a display output. तो आप उस केस में Chromecast को यूज़ कर सकते हैं to cast your screen. I would say that would be an easier option. And if you can give more details about the exact model of tab that you're using, या फिर आप किस तरीके से रन करना चाह रहे हैं, I might give you some more insightful information. But as of now, I would say not all devices have the ports designed the same way. Sometimes the functionality is limited. तो आप ज़रूरी नहीं है कि उस डिस्प्लेस का आउटपुट ले पाएँ बाहर. You can use a wireless solution that way. Hi, Technical Guruji. Is there any way at all to track my kids' smartphone usage? Yes,
very easy and it's very important as well. आपको ये काम करना चाहिए. एनी फ़ोन, आईफोन हो या एंड्रॉयड फ़ोन हो, सभी में आपको स्क्रीन टाइम का ऑप्शन मिल जाता है. अलग अलग नाम से आपको मिलेगा, बट येस, योर फोन हैज़ दैट ऑप्शन. यू कैन नॉट जस्ट ट्रैक इट, यू कैन इवन पुट अ लिमिट टू इट. अगर आप चाहते हैं कि योर किड शुड नॉट बी वॉचिंग यूट्यूब फॉर मोर देन 30 मिनट्स अ डे, आप वहाँ पे एक लिमिट लगा सकते हैं. सेम गोज फॉर ऑल द एप्स, द फोन इन जनरल. एंड इनफैक्ट एट द वीकेंड लेट्स से, या हर दिन शाम को यू कैन हैव अ लुक कि उस दिन में फ़ोन में कितना यूजेज हुआ है और कौन सी ऐप को कितनी देर के लिए यूज़ किया गया है. इट्स वेरी ईजी एंड यू शुड डू इट. Hi Technical Guruji, I have been thinking of adding Apple CarPlay to my car, but I haven't been able to decide if I should get an add-on CarPlay unit or completely replace my entertainment unit. Please suggest. It depends on the kind of car you have. कितनी पुरानी वो कार है, जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उसके क्या फंक्शंस हैं, किस तरीके से पूरा सेटअप है. आई वुड से दोनों ही सॉल्यूशंस अच्छे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन. जो अलग से एड ऑन आते हैं, इवन दोज आर वेरी फंक्शनल, लीस्ट अमाउंट ऑफ वायरिंग एंड ऑल इन्वॉल्व, बहुत ही ईजी प्लग एंड प्ले टाइप से आप एंजॉय कर सकते हैं CarPlay इन योर कार. सेकेंड ऑप्शन ये है कि इफ़ यू रियली वांट टू हैव एन अपडेटेड एंटरटेनमेंट यूनिट, तो आप उस केस में फिर पूरा ही चेंज करवा सकते हैं. बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन विच कार यू हैव, हाउ ओल्ड इज इट, हाउ मच यू वांट टू स्पेंड इन दैट, एंड आप कितना ओपन है अबाउट दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इन योर कार. तो या Okay, so guys, that's all from this week's Gadgets 360 with Technical Guruji, जहाँ पे हमने OnePlus Open के बारे में बात करी है. I opened some interesting facts in front of you. मैंने एक टिप भी शेयर करी. And in fact, go ahead, do all the updates to your devices right now for this episode, because updates बहुत ज़रूरी हैं और आपको करने चाहिए. वैसे एक और चीज़ ज़रूरी है, which is communication, बातचीत. अब मोबाइल फ़ोन में you can use the text to speech, but if you have any questions, any queries, any feedback, anything you want me to listen to, you know the address. It's tg@ndtv.com. जाओ जल्दी से ईमेल को यूज़ करो और मुझे भेज दो अपने सारे सवाल, सारा प्यार, और मैं आपसे मिलता हूँ इन द नेक्स्ट वीक्स एपिसोड ऑफ दिस शो. अभी के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे.